Okay, so long back we have started with the third unit. We'll just revise the things. So main these all topics are covered, subtopics are covered in this unit. Okay, so first is data pre-processing. Just a minute. So the name of unit is data pre-processing. Okay, so data pre-processing overview we have seen first, and then these all are four different process included in data pre-processing. ओके सो हमने देखा डेटा क्लीनिंग देन डेटा इंटीग्रेशन भी हमने देखा है इन एवरी दिस प्रोसेस देयर आर मेनी सब प्रोसेसेस और यू कैन से कि एक डेटा प्री प्रोसेसिंग जो है उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस हैं बहुत सारे स्टेप्स हैं और ये हर एक स्टेप में हर एक स्टेप परफॉर्म करने का एक अलग अलग बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं या फिर उसमें भी हमारे पास अलग अलग सब प्रोसेसेस हो सकते हैं आ रहा है समझ में कि एक मेन जो प्रोसेस है डेटा प्री प्रोसेसिंग दैट इज नेम ऑफ आवर यूनिट डेटा प्री प्रोसेसिंग के अंदर बहुत सारे सब प्रोसेसेस है या डेटा प्री प्रोसेसिंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस okay multiple steps are there so these are the four main processes included under data pre-processing data cleaning data integration data reduction data transformation and data discretization these four are main processes मेन स्टेप्स इन डेटा प्री प्रोसेसिंग और ये जो हर एक प्रोसेस है इसके अंदर सब प्रोसेसेस हो सकते हैं या सेम प्रोसेस परफॉर्म करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं बेस्ड ऑन योर डेटा आपका डेटा टाइप क्या है आपका डेटा कैसे है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि डेटा क्लीनिंग के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं या डेटा इंटीग्रेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं वैसा ही हर एक स्टेप के लिए ठीक है तो data pre-processing what is importance that we have seen so we want quality data and for getting quality data we have to pre-process the data okay because when quality of data is good we can get good insights from that data so data pre-processing is a very crucial process in data mining okay so these are the major tasks in data pre-processing. I just explain you data cleaning, integration, reduction and transformation. Okay. तो ये एक डायग्राम था जिसमें हमने देखा था कि कौन से फोर मेजर टास्क होते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग में सो पहला है डेटा क्लीनिंग देन इंटीग्रेशन मीन्स यू कलेक्ट डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस and then you integrate it at one place transformation means converting the data into same format okay and data reduction means to reduce the data in order to save the space in order to make data mining task easy so for that the reduction is used okay so first we started with data cleaning so as its name suggests we are going to clean the data so जैसे हम कोई भी चीज़ क्लीन करते हैं अननेसेसरी अनवांटेड जो भी उसमें होता है वो हम निकाल देते हैं just like that we are going to clean the data so we have data और उस डेटा में जो भी अनवांटेड उस डेटा में जो भी अनवांटेड डेटा है that we are going to remove okay so ये डेटा में क्या क्या इम्प्यूरिटीज हो सकती है जो हमें निकालनी है so data can have missing values okay data can have noise data can have outliers and inconsistencies ये क्या हो गई डेटा में impurities okay and now we are going to clean the data by removing these impurities okay so there are ways to handle the missing values there are ways to smooth data to remove noise okay there are methods to identify the outliers and remove them okay there are methods to remove inconsistencies in the data so after this we have seen various techniques okay तो डेटा क्लीनिंग का सबसे पहला टेक्निक हमने देखा था
मिसिंग वैल्यूज। ओके, मिसिंग वैल्यूज मीन्स एक एग्जांपल से मैंने समझाया था आपको कि अगर आपका डेटा ऐसा है, दिस इज ओनली सैम्पल डेटा, so as I always say, in real life data, the data is very huge. There are hundreds of columns and there are thousands of rows. Okay, ये जो हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये सिर्फ एज अ सैम्पल डेटा आप कंसिडर कर लो। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं ऐसे एग्जाम्पल्स इंक्लूड करती हूँ, लेकिन रियल लाइफ में जो डेटा होता है वो बहुत बड़ा होता है। उसमें ये जो कॉलम्स यहाँ पे 5 कॉलम्स दिख रहे हैं, वैसे 100 या मोर देन 100 कॉलम्स भी हो सकते हैं। और ये जो 7 रोज आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये 1000 में, मल्टीपल थाउजेंड्स में, मिलियन मिलियन में भी डेटा हो सकता है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट टेक्निक ऑफ डेटा क्लीनिंग इज मिसिंग वैल्यूज। तो ये जो डेटा में आप एम्प्टी सेल्स देख रहे हो, ये एम्प्टी सेल्स हम एज इट इज डेटा माइनिंग के लिए नहीं दे सकते, बिकॉज अवर डेटा हैज मिसिंग वैल्यू। और ये मिसिंग वैल्यूज हमें कुछ तो टेक्निक यूज करके फील करनी पड़ेगी। ओके, तो देर आर मल्टीपल टेक्निक्स टू फील द मिसिंग वैल्यू। ओके, वी हैव सीन दोस टेक्निक। एक तो हम इग्नोर कर सकते हैं टपल, मतलब अगर आपके डेटा में मिसिंग वैल्यूज का प्रोपोर्शन बहुत ही कम है, जैसे 10,000 में आपके पास ओनली 1 मिसिंग वैल्यू है, तो ये जो 1 मिसिंग वैल्यू वाला टपल है वो आप इग्नोर कर सकते हो। ओके, बट दिस टेक्निक इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, बिकॉज हमें पता नहीं कि हम जो डिलीट करने वाले में भी वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होगा। सो रिमूव, देर इज दिस इज अ टेक्निक बट इट इज very rarely used. Okay, now second is fill in the missing value manually. Okay, तो हम मैन्युअली भी वो मिसिंग वैल्यू फील कर सकते हैं। जैसे कुछ एम्प्लॉय का डेटा है और उसमें कुछ एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तो एचआर क्या कर सकता है, उस इंडिविजुअल को कॉल करके उसकी इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ योर मिसिंग वैल्यूज आर वेरी लेस, बिकॉज दिस प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग एंड इम्प्रैक्टिकल फॉर लार्ज डेटा सेट। बहुत बड़े डेटा सेट के लिए हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट इज यूजिंग अ ग्लोबल कांस्टेंट। तो जो भी मिसिंग वैल्यू है, अगर न्यूमेरिक है तो वहाँ पे आप -1 0 ऐसी कुछ ग्लोबल कांस्टेंट वैल्यू रख दो, या फिर दूसरे कुछ फॉर्मेट में है तो उसमें ऐसे अननोन ऐसा कुछ कांस्टेंट रख दो। ओके, दिस इज वन मोर मेथड। यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है कि हम एम्प्टी सेल वाला डेटा माइनिंग के लिए नहीं दे सकते, कुछ भी करके हमें वहाँ पे वैल्यूज फील करनी पड़ेगी। तो वैल्यू फील कैसे करनी है उसके ये अलग अलग टेक्निक्स हैं। ठीक है, then next, see these first three techniques are very rarely used. Okay, not recommended, but again आपके डेटा में मिसिंग वैल्यूज का प्रोपोर्शन बहुत कम है, तो आप यूज कर सकते हो। ओके, these remaining three methods are mostly used. So first method is use a measure of central tendency. So we have seen various measures of central tendency. तो अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो आप एवरेज निकाल के, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उनका एवरेज निकाल के एम्प्टी सेल में वो वैल्यू फील कर सकते हो, या फिर मीडियन निकाल के फील कर सकते हो। ओके, और एक टेक्निक है सेम क्लास का मीन या मीडियन निकाल के फील कर सकते हो, या फिर सिक्स लास्ट टेक्निक इज प्रिडिक्ट मिसिंग वैल्यूज यूजिंग मेथड्स लाइक रिग्रेशन। कोई एडवांस एल्गोरिदम यूज करके आप वो मिसिंग जो डेटा है वो प्रिडिक्ट करके फिर उसमें वैल्यू फील कर सकते हैं। Okay, these are the techniques for missing value, which is one of the process in data cleaning. समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now next we have seen data smoothing techniques. So data smoothing technique again is a sub process of data cleaning. Okay, तो data smoothing में हम क्या करते हैं, पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे डेटा में नॉइज है या नहीं। So if noise is present in the data, we can smooth out the data by removing noise. Okay,
अभी नॉइज कैसे रिमूव करना है? नॉइज रिमूव करने के लिए हमारे पास अलग अलग टेक्निक है, जैसे बाइनिंग, रिग्रेशन, आउटलायर एनालिसिस। these are some of the techniques used for smoothing the data. ओके, फिर हमने देखा था बाइनिंग टेक्निक। बाइनिंग टेक्निक हमें हेल्प करता है नॉइज रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो हम नॉइज कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अगेन देयर आर 3 टेक्निक्स हियर: स्मूथिंग बाय मीन्स, स्मूथिंग बाय मीडियंस, स्मूथिंग बाय बीन बाउंड्रीज। ओके, इसमें क्या है कि ईच वैल्यू इन बीन इज रिप्लेस्ड बाय मीन वैल्यू। मैंने आपको एग्जांपल भी लिया था इसका। तो अगर आपके पास ये डेटा है और आपको ये डेटा स्मूथ करना है, मतलब यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कि इस डेटा में नॉइज है, सो यू वांट टू स्मूथ दिस डेटा। फॉर स्मूथिंग पर्पज, these are the steps. First you have to sort the data, then decide the size of bin and partition your data into मल्टीपल बीन्स और बकेट्स। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे 3 का अगर हमने साइज लिया तो 3 3 के ग्रुप में ये डेटा डिवाइड करते हैं, एंड देन वी अप्लाई स्मूथिंग टेक्निक। तो स्मूथिंग टेक्निक में क्या करते हैं, हर एक स्मूथिंग टेक्निक के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं हम। जैसे फर्स्ट है कैलकुलेट मीन फॉर ईच बीन एंड रिप्लेस ईच वैल्यू इन द बीन विथ मीन। मतलब हमें क्या करना है, दिस इज आवर फर्स्ट बीन, दिस इज सेकेंड बीन एंड दिस इज थर्ड बीन। तो इनका एवरेज निकालना है और हर एक वैल्यू उस एवरेज से रिप्लेस करना है। तो तो आपके डेटा में जो भी नॉइज है दैट विल गेट रिमूव। ओके, वैसे ही मीडियन का है और वैसे ही बीन बाउंड्रीज का है। Okay, then other technique to reduce noise are regression and outlier analysis. Okay, so outlier analysis में हम clustering form करके outliers identify करते हैं, और जो points आपके cluster के बाहर है, those are the outliers, we try to remove them. और regression एक ऐसा टेक्निक है जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू प्रेडिक्ट करता है। तो अगर आपके 2 कॉलम में वैल्यू है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उससे आप थर्ड कॉलम की वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे, एंड देन यू विल रिप्लेस दैट मिसिंग वैल्यू यूजिंग रिग्रेशन। ओके, ये जो रिग्रेशन टेक्निक है ये स्मूथिंग के लिए या नॉइज रिमूव करने के लिए भी यूज होता है। तो ये यहाँ पे कैसे यूज होता है, इट फिट्स द लाइन टू 2 एट्रीब्यूट्स सो दैट वन कैन बी यूज टू प्रेडिक्ट द अदर। ठीक है, तो जो नॉइज है आपके डेटा में, वो आप उसके लिए आप वैल्यू प्रेडिक्ट करके वो नॉइज रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द टेक्निक्स फॉर डेटा स्मूथिंग। डेटा स्मूथिंग के कौन कौन से टेक्निक्स है, बाइनिंग, रिग्रेशन, आउटलायर एनालिसिस, राइट। और डेटा क्लीनिंग के कौन कौन से टेक्निक्स थे, सॉरी मिसिंग वैल्यूज के कौन कौन से टेक्निक्स थे। ये जो 6 टेक्निक्स हमने देखे ये है मिसिंग वैल्यूज के। ओके, तो रिमूविंग मिसिंग वैल्यूज एंड देन स्मूथिंग, दीज आर द सब प्रोसेसेस ऑफ डेटा क्लीनिंग। ओके, अभी सिर्फ क्या बचा है हमारा, इसमें हम थर्ड देखने वाले हैं, अप्रोचेस टू डेटा क्लीनिंग एज अ प्रोसेस। ठीक है, डेटा क्लीनिंग में और भी कुछ कुछ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स इंक्लूड कर सकते हैं हम, डिपेंडिंग ऑन द डेटा। ठीक है, ये 2 मेन प्रोसेसेस हमने देखे, मिसिंग वैल्यूज और स्मूथिंग। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस करना और अगर नॉइज है आपके डेटा में तो वो रिमूव करना। और भी प्रोसेसेस हो सकते हैं आपके डेटा क्लीनिंग में, जैसे डिस्क्रिपेंसी डिटेक्शन, इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ कोड्स। आप ये डिटेल में पढ़ लेना, आई एम जस्ट रिवाइजिंग, क्योंकि अगर डिटेल में ये सब एक्सप्लेन किया तो हमारा लेक्चर इसमें ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, देन वी कैन डिसाइड सम रूल्स फॉर डेटा, एंड दिस डेटा क्लीन फॉर डेटा क्लीनिंग वी कैन यूज मेनी कमर्शियल tools are available to automate process of data cleaning. Okay, and it should be an iterative process, बिकॉज आपका डेटा बढ़ता ही जाता है। ऐसे नहीं है कि एक बार आपने डेटा पे सारा प्रोसेस कर लिया, नाउ योर डेटा इज रेडी एंड अभी आप उस डेटा के तरफ देखोगे ही नहीं, ऐसे नहीं है। डेटा गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो जैसे आपका डेटा बढ़ता है वैसे आपको ये प्रोसेस बार बार उस पर फॉलो करना पड़ता है।
ठीक है. So it is an iterative process. Now some new modern approaches are available for data cleaning, जैसे Potter's wheel है, which is an interactive data cleaning tool which allows you to gradual and reversible transformation building. Then you can use डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस लाइक एसक्यूएल, जैसे डेटा से डेटाबेसेस आप यूज कर सकते हो डेटा स्टोर करने के लिए. वो पहले ही आपका डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में अच्छे से स्टोर करेंगे, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू प्रोसेस द डेटा. ओके. एंड एवरी टाइम यू आर कलेक्टिंग द डेटा, यू आर प्रोसेसिंग द डेटा, दिस मेटा डेटा इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. मतलब आपको, आपके पास कोई भी डेटा आया डेटा माइनिंग के लिए और उस पे आप कोई भी प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो, तो व्हाइल यू परफॉर्म दोस प्रोसेसेस यू गेट टू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट योर डेटा. आपको वो डेटा, आप उस डेटा को अंडरस्टैंड करते जाते हो. तो जैसे ही आप डेटा को अंडरस्टैंड करते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड मेटा डेटा. मतलब मेटा डेटा इज व्हाट, इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेशन. आपके डेटा के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन समझ में आ रहा है, that you have to store, because it's not like you are the only one person who is dealing with that data. अगर डेटा के साथ मेटा डेटा स्टोर है तो उसका फायदा जितने भी लोग उस डेटा के साथ डील करते हैं उन सबको होगा. So continuously keep on updating metadata, because metadata updates the metadata speeds up the data cleaning process. Okay. So this is all about data cleaning, which is one step in data pre-processing. Okay. And secondly, we have started with data integration. Okay. Now what is integration? इसके नाम से ही पता चलता है, इंटीग्रेशन मीन्स अलग अलग सोर्सेस से हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब मर्ज करते हैं या कंबाइन करते हैं. ठीक है. सो मर्जिंग डेटा from multiple sources can reduce the redundancies. अभी हमें जब भी हम मर्ज करेंगे डेटा तो उसमें रिडंडेंसीज हो सकती है, उसमें इनकंसिस्टेंसीज हो सकती है. ठीक है. सो टू अवॉइड दोज रिडंडेंसीज एंड इनकंसिस्टेंसीज, जो डेटा का इंटीग्रेशन होगा वो प्रॉपरली होना चाहिए, उसमें रिडंडेंसीज नहीं आनी चाहिए, इनकंसिस्टेंसीज नहीं आनी चाहिए. So that is the reason we have various techniques in data integration that we can use. Okay. So there are few challenges for data integration. Semantic heterogeneity, that means differences in meaning and interpretation of data across the sources. मतलब अलग अलग लोग डेटा को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, and it causes semantic heterogeneity. Okay. And then another challenge is structure of data. तो अलग अलग सोर्सेस पे आपको जो डेटा मिलता है दैट इज इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. ओके. सो टू मर्ज दिस डेटा present in different structure at one place is a big challenge. Okay. So these two are the challenges in data integration. And for proper data integration we have these four techniques: entity identification problem, correlation tests, tuple duplication, and data value conflicts. Okay. So I think we have completed this entity identification and correlation test. We have seen chi-square test. I think we have also seen covariance. Okay. So the first technique used in data integration is entity identification problem. So I have explained you this with one example. जैसे सेल्स डिपार्टमेंट के पास एक डेटाबेस है जिसमें कस्टमर्स का डेटा है. सेम ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट डिपार्टमेंट के पास भी एक डेटाबेस है, उसमें भी कस्टमर का ही डेटा है. ठीक है. लेकिन अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन में दो अलग अलग डिपार्टमेंट है तो उसमें कस्टमर का डेटा सेम होना चाहिए, राइट. तो लेकिन आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये डेटा सेम लोगों का डेटा है, बट both the departments have stored this data in different format. जैसे आप कस्टमर आईडी यहाँ पे देखोगे
तो सेल्स डिपार्टमेंट ने कस्टमर आईडी सिर्फ ऐसे स्टोर करके रखे हैं 101, 102, 103, लेकिन सपोर्ट में उन्होंने कैसे स्टोर किया है C001, C002 लाइक दिस। ओके, वैसे ही आप नेम देखोगे तो नेम में भी आपको डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, ईमेल आईडी सेम है लेकिन फोन ओके, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर सेम है, लेकिन इन्होंने ईमेल आईडी के कॉलम को नाम दिया है सिर्फ ईमेल एंड सपोर्ट डिपार्टमेंट हैज गिवन इट एज अ ईमेल एड्रेस। अभी यहाँ पे दिया है फोन, यहाँ पे दिया है कॉन्टैक्ट नंबर। ओके, तो जब हम ये डेटा मर्ज करेंगे तो क्या होगा, एज कस्टमर आईडीज आर यूनिक दे आर डिफरेंट। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसमें 6 रोज आ जाएंगे, राइट। यहाँ पे नेम है और यहाँ पे फुल नेम है, तो उसमें कस्टमर, उसमें कॉलम्स क्या क्या आ जाएंगे। यहाँ पे वैसे तो आइडियली कितने कॉलम्स होने चाहिए, 4, 4 कॉलम्स होने चाहिए, राइट। लेकिन डेटा आपका कंसिस्टेंट नहीं है, इसकी वजह से क्या होगा, ये जब आप डेटा मर्ज करोगे, ये दोनों डेटा सेट जब मर्ज करोगे और उसके बाद जो डेटा बनेगा उसमें होंगे आपके 6 रोज एंड 8 कॉलम्स, which is not at all correct. Getting my point? समझ में आ रहा है? मैम ये सब डेटा इनकंसिस्टेंसी की वजह से हो रहा है क्या? ये डेटा करेक्ट है, ये सेल्स का डेटा भी करेक्ट है, सपोर्ट का डेटा भी करेक्ट है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें ये डेटा मर्ज करना है, हमें डेटा कंबाइन करना है। ठीक है, तो जब हम कंबाइन करने के लिए जाएंगे तो अगर यहाँ पे देखेंगे विदाउट डेटा हमने देखा ही नहीं और ऐसे ही मर्ज किया तो क्या होगा, कस्टमर आईडी अलग कंसीडर होगा, कस्टमर नंबर ये एक अलग कॉलम कंसीडर होगा, एक नेम बनेगा, एक फुल नेम बनेगा, एक ईमेल बनेगा, दूसरा ईमेल एड्रेस बनेगा। ऐसे मल्टीपल कॉलम्स बनेंगे, जैसे आइडियली 4 होने चाहिए तो कॉलम के नाम अलग अलग है, इसलिए हमारे पास 8 कॉलम बनेंगे। ठीक है, कस्टमर आईडी यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर किया है, इसलिए आइडियली 3 ही रोज होने चाहिए, बिकॉज ये 3 लोगों का ही डेटा है, लेकिन उसमें मर्जिंग के बाद कितने कॉलम्स बनेंगे, 6, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अलग अलग लोगों ने डेटा अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर किया है, एंड रियल लाइफ में ऐसे ही होता है कि अगर आपका कोई रिटेल स्टोर, आप अगर कोई रिटेल स्टोर का डेटा कलेक्ट करते हो तो हर एक ब्रांच का डेटा आपके पास अलग अलग आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डेटा का स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, स्टडी मीन्स अगर इसके साथ मेटा डेटा स्टोर है कि ये कस्टमर आईडी, इसने भी लिख के रखा है कि कस्टमर आईडी इज अ यूनिक आईडी फॉर कस्टमर, और सपोर्ट ने भी लिख के रखा है कि कस्टमर नंबर इज द यूनिक नंबर फॉर एवरी कस्टमर। तो ये मेटा डेटा अगर प्रेजेंट है तो आपको समझ में आएगा कि कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नंबर इज वन एंड द सेम। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों में से एक कोई तो यूज कर लो, या फिर एंटायरली एक न्यू कस्टमर आईडी बना लो, सबको कस्टमर आईडी दे दो और फिर रिकॉर्ड स्टोर करो। ठीक है, तो ये जो आपने किया कि कस्टमर आईडी आपने आइडेंटिफाई किया कि ये दोनों कॉलम सेम है, दिस इज कॉल्ड एज एंटिटी आइडेंटिफिकेशन। मतलब एंटिटी को आप आइडेंटिफाई करते हो एंड देन यू गो फॉर इंटीग्रेशन। अगर आपने एंटिटी का आइडेंटिफिकेशन नहीं किया, डेटा सेट देखा ही नहीं, तो आपका डेटा सेट पूरा इनकरेक्ट हो जाएगा। गॉट इट? यस मैम। इससे क्या होता है, डेटा की क्वालिटी खराब हो जाती है एंड विच इज नॉट अफोर्डेबल एंड नॉट डिजायरेबल। ठीक है, तो ये हुआ एंटिटी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। तो ये एंटिटी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम आप कैसे रिमूव कर सकते हो, बाय स्टैंडर्डाइजिंग द एट्रीब्यूट नेम। जैसे आपने कस्टमर नंबर भी निकाल दिया, कस्टमर नंबर निकाल दिया और कस्टमर आईडी एक स्टैंडर्ड ले लिया, फिर आपने ये आईडी की वैल्यूज भी फिक्स कर दी, डिसाइड कर ली कि मुझे आईडी की वैल्यू चाहिए ऐसे 101, 102, 103। देन नेम पे भी आपने डिसाइड किया कि आपको क्या चाहिए, कॉलम नेम, और उसके वैल्यूज भी आपने फाइनलाइज कर लिए। देन ईमेल, फोन, ऐसे एट्रीब्यूट नेम्स आपने फाइनल किए और फिर उनकी वैल्यूज भी आपने क्रॉस वेरीफाई कर ली। तो ये जो डेटा बना आपका,
This is what consistent correct data in proper format after integration. ओके, इंटीग्रेशन के बाद आपको सिर्फ 4 ही कॉलम्स मिले एंड यू हैव गॉट ओनली 3 रोज, सो दिस इज द करेक्ट डेटा. ओके, बट करेक्ट डेटा तक आप कैसे आए? पहले तो आपने आइडेंटिफिकेशन किया, उसके बाद कुछ रूल्स अप्लाई किए, जैसे मेटा डेटा यूज किया, एट्रीब्यूट के नेम स्टैंडर्डाइज किए, ओके, वैल्यूज करेक्ट आइडेंटिफाई की. सो ऑल दिस प्रोसेस कम अंडर एंटिटी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम. ओके, ठीक है. यस मैम. हाँ, और ये एंटिटी आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम किस प्रोसेस का सब प्रोसेस है? डेटा इंटीग्रेशन. डेटा इंटीग्रेशन का. ठीक है, सो करंटली अभी हम देख रहे हैं डेटा इंटीग्रेशन स्टेप ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग. ठीक है, देन नेक्स्ट हमने इसमें डेटा इंटीग्रेशन का चैलेंज है रिडंडेंसी एंड कोरिलेशन एनालिसिस. ओके, अभी हमें क्या करना है, हमारे डेटा में जो रिडंडेंसी है वो रिमूव करनी है. रिडंडेंसी का मतलब समझते हो आप? मैम डुप्लीकेट डाटा. राइट, डुप्लीकेट डेटा. तो डुप्लीकेट का मतलब सिर्फ ऐसे एक सेम कॉलम 2 बार आया ऐसे नहीं होता है. यहाँ पे रिडंडेंसी के और भी मतलब हो सकते हैं. तो वो कैसे होता है, मैंने एक एग्जांपल से आपको आई थिंक समझाया था कि जैसे आप आपके डेटाबेस में लेट से ऑर्डर का डेटा है, परचेस या फिर सेल्स का डेटा है. ठीक है, तो ये सेल्स के डेटा में मैंने आपको बताया था कि हर एक कस्टमर का जो बिल होता है वो स्टोर है. ठीक है, तो कोई भी एक आइटम है, आइटम 1, उसकी आप क्वांटिटी स्टोर करते हो जैसे 2, एंड उसकी प्राइस स्टोर करते हो जैसे लेट से 250. ओके, और आपके डेटाबेस में और भी एक कॉलम है टोटल, उसमें आप स्टोर करते हो 500. तो अगर आपको क्वांटिटी पता है और प्राइस पता है तो उससे ये टोटल तो आप निकाल सकते हो. देयर इज नो नीड टू स्टोर दिस डेटा इन द डेटाबेस, राइट? ये दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ रिडंडेंसी. ठीक है, जैसे ये दोनों इंप्लाई करते हैं टोटल, क्वांटिटी एंड प्राइस इंप्लाइज टोटल. ठीक है, तो अगर ये टोटल आपने स्टोर किया तो आपका स्पेस भी वेस्ट हो जाएगा, प्रोसेस डेटा भी इंक्रीज हो जाएगा एंड प्रोसेसिंग स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगा. तो देयर इज नो नीड टू स्टोर सच डेटा. दिस इज जस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग. तो इस टाइप का डेटा भी अगर आपके डेटाबेस में प्रेजेंट है तो दिस इज आल्सो रिडंडेंसी. ठीक है, तो ऐसे टाइप के सारे रिडंडेंसीज हमें बिफोर इंटीग्रेशन रिमूव करने हैं. ठीक है, तो वो रिमूव करने के लिए हमारे पास अगेन वी हैव मल्टीपल मेथड्स, जैसे कोरिलेशन एनालिसिस. उसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हमारा डेटा है उसमें एट्रीब्यूट्स में कुछ कोरिलेशन है या नहीं. Then we have chi-square test, correlation coefficient, covariance. These are some of the methods to find redundancy and correlation analysis in the data. Okay, उसके बाद हमने chi-square test देखा था, उसका एक डिटेल में हमने एग्जांपल देखा था, तो अभी मैं वो एग्जांपल एक्सप्लेन नहीं करती हूँ. ये नोट्स में डिटेल में एग्जांपल मैंने इंक्लूड किया है तो आप देख सकते हो. ओके, तो अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉर्मूला जो हैं इट विल टेक टाइम. ठीक है, तो काई स्क्वायर टेस्ट का पर्पस क्या है कि जो आप अगर आपके डेटाबेस में नॉमिनल डेटा है तो नॉमिनल डेटा के कॉलम में कोरिलेशन फाइंड आउट करता है काई स्क्वायर टेस्ट. ठीक है, और हम यहाँ पे आफ्टर काई स्क्वायर टेस्ट क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर ये जो क्रिटिकल वैल्यू है वो आपने जो काई स्क्वायर वैल्यू निकाली है उससे बहुत ज़्यादा है, तो जो वेरिएबल्स आप देख रहे हो, जो 2 वेरिएबल्स आप कंपेयर कर रहे हो, उनमें कोरिलेशन है. ठीक है, और अगर इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो दे आर नॉट कोरिलेटेड.
और जब A और B, let's say A and B two columns, when they are correlated, अगर हमें ऐसे पता चला कि दिस A एट्रीब्यूट एंड B एट्रीब्यूट, दिस टू एट्रीब्यूट्स आर कोरिलेटेड, तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक रख सकते हैं और एक रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, रिमूव करना ही है बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस द रिडंडेंसी। तो कोरिलेशन है मतलब रिडंडेंसी प्रेजेंट है, और वो रिडंडेंसी रिमूव करने के लिए हमें इन दोनों में से एक कॉलम निकाल देना है। ठीक है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कोरिलेटेड है या नहीं, तो फॉर दैट वी हैव काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट आपको बताएगा कि कोई भी दो कॉलम एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है तो आपको एक निकाल देना है, नहीं है तो आप समझ जाते हो कि दोनों भी इंपॉर्टेंट है मेरे डेटा के लिए, तो दोनों को भी रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट टेक्निक इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर न्यूमेरिक एट्रीब्यूट। जो काई स्क्वायर टेस्ट मैंने अभी बताया, इट इज यूज्ड फॉर नॉमिनल डेटा। ठीक है, अगर नॉमिनल डेटा है तो आप यूज कर सकते हो काई स्क्वायर टेस्ट। अभी आप डेटा में न्यूमेरिक वैल्यूज भी होते हैं, तो न्यूमेरिक डेटा के कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, and for that correlation coefficient we have this formula, it is called as Pearson's product moment coefficient. ओके तो ये कोएफिशिएंट हम निकालते हैं, एंड ये जो कोएफिशिएंट होता है r, इसकी वैल्यू होती है बिटवीन रेंज -1 to +1। ठीक है, if that r is greater than 0 indicates positive correlation, if r is equal to 0 that means there is no correlation, and if r is less than 0 that means there is a negative correlation। ठीक है, तो अगर strong positive correlation है या strong negative correlation है, तो अगेन पॉजिटिव या निगेटिव ए एंड बी अगर कोरिलेटेड है स्ट्रांगली, तो हमें क्या पता चलता है कि हमारे डेटा में रिडंडेंसी है, तो हम ए और बी में से कोई भी एक एट्रीब्यूट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज होता है फॉर न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स। और अगर आर 0 आ रहा है आपका, दैट मीन्स देयर इज नो कोरिलेशन, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, सो वी हैव टू कीप बोथ ऑफ देम। उसका ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू इस रेंज में होता है -1 to +1। सो इफ इट्स डायरेक्शन इज लाइक दिस, दैट मीन्स इफ निगेटिव कोरिलेशन इज देयर, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जैसे आपका एक कॉलम बढ़ रहा है, ए इंक्रीज हो रहा है, वैसे ही बी आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज निगेटिव कोरिलेशन, बट दे आर कोरिलेटेड। एंड ये जो 1 है ये इंडिकेट क्या करता है कि आपका ए जैसे ही इंक्रीज होता है वैसे बी भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको कहते हैं हम पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, देन नेक्स्ट टेक्निक वी हैव सीन इज कोवेरिएंस एनालिसिस। ओके, तो इसमें हम ए एंड बी का कोवेरिएंस, ए एंड बी टू एट्रीब्यूट्स का कोवेरिएंस निकालते हैं। अगेन वी हैव formula for covariance. Okay, covariance and correlation are closely related, formulas भी उनके बहुत से सेम हैं, ये हमने देखा था। ओके, तो वो जो वैल्यू होती है कोरिलेशन की, उसके लिए कुछ रेंज होता है, जैसे -1 to +1 अभी हमने देखा। वैसे कोवेरिएंस का जो वैल्यू होता है वो डिपेंड होता है आपके डेटा के वैल्यू पे। आपके डेटा के वैल्यू में, डेटा में जितने बड़े वैल्यूज होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट द कोवेरिएंस। ओके, जैसे आपके डेटा में यूनिट है वैसे यूनिट यहाँ पे आएंगे, लेकिन कोरिलेशन में कितने भी बड़े वैल्यूज हो आपके डेटा में, उसका कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 to +1 में ही आएगा। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। ठीक है, और जैसे कोरिलेशन में हमने देखा पॉजिटिव निगेटिव 0, वैसे कोवेरिएंस के लिए भी है positive, negative and 0. Okay, so positive covariance means A and B tend to change together in the same direction, and negative covariance means A and B tend to change in opposite direction. Okay, and 0 means they are independent. Then we have seen this example of covariance. I explained you in the previous lecture. Okay, now today we'll see
The another technique or another technique used in data integration is tuple duplication. Okay, तो अभी ये जो डुप्लीकेशन हो रहा है, ये जो आपने रिडंडेंसी के लिए डुप्लीकेशन बोला था, वो डुप्लीकेशन अभी यहाँ पे हम देखेंगे. ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है आपको? रिवीजन हो गया आपका अच्छे से, अभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है ना? यस मैम. Yes, ma'am. ओके, तो ये है टपल डुप्लीकेशन. Tuple duplication in data mining refers to occurrence of multiple identical records representing the same data entry within data set. ओके, तो अगर आप इस डेटा सेट, ये डेटा सेट यहाँ पे जो सैंपल दिया हुआ है, ये देखोगे तो ये देख के मुझे बताओ कि इस डेटा सेट में क्या प्रॉब्लम है. मैम कस्टमर आईडी 2 और Phone 5 में सेम नेम है उसका. राइट, Repeat कस्टमर हो रहा आईडी है तो मैम. हमारे पास अलग अलग है, 2 एंड हाँ Name बस repeat हो नेम रहा है. सेम. राइट. ma'am, name and phone number. सॉरी, मैम नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर फिर से आ रहे हैं. ओके, अगर ये डेटा आप देखोगे तो इसमें सेकंड एंड फिफ्थ रिकॉर्ड, इसमें कस्टमर आईडी तो अलग अलग है, लेकिन अगर आप डेटा कंपेयर करोगे तो डेटा एग्जैक्टली सेम है. राइट, ये देन एड्रेस भी सेम है, फर्स्ट एंड थर्ड फोन है नंबर भी मैम. सेम है. राइट, वैसे ही अगर आप फर्स्ट देखोगे जॉन स्मिथ एंड थर्ड वन, इसमें भी कस्टमर आईडी अलग अलग है लेकिन डेटा एग्जैक्टली सेम है, नेम, एड्रेस, फोन नंबर. ये क्या हुआ? डुप्लीकेशन. ओके, हमें डेटा में ऐसा डुप्लीकेशन नहीं चाहिए, बिकॉज दिस डुप्लीकेशन कैन लीड टू inconsistencies, inaccuracy, increased storage requirements, performance issues, and analysis errors. So we have to remove such duplication from the data. Okay, because it may cause and ये duplication क्यों आता है? कभी कभी डेटा एंट्री के एरर्स होते हैं, जैसे देर आर मल्टीपल पीपल हु आर एंटरिंग डेटा ऑफ द कस्टमर्स. वैसे हो सकता है कि एक एंट्री बार बार हो गई, कभी कभी सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आता है तो डेटा ठीक से एंटर नहीं हो पाता है, तो री एंटर किया जाता है, इसकी वजह से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आ जाते हैं डेटाबेस में. ठीक है, तो रीजन में बी एनीथिंग. अगर आपके डेटाबेस में टपल डुप्लीकेशन है तो वी हैव टू remove that tuple duplication. Okay, that is the point. So what are solutions for tuple duplication? Data cleaning, normalization, unique constraint, deduplication algorithms. These are the solutions on tuple duplication. So by following some data cleaning process, we can identify and remove duplicates. Then we can normalize the database to minimize the redundancy. We can enforce unique constraint, जैसे मे बी आपने डेटाबेस में देखा होगा कि प्राइमरी की जैसे अगर हम कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करते हैं तो ये कंस्ट्रेंट रिस्ट्रिक्ट करते हैं यूजर को डुप्लीकेट डेटा एंटर करने से. राइट, इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू एरर इफ यू आर इंसर्टिंग सम डुप्लीकेट टपल इनटू द टेबल. ऐसे यूनिक कंस्ट्रेंट हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है आपके पास और आपको पता चला कि उसमें डुप्लीकेट डेटा है, तो कुछ अल्गोरिदम्स है जो आपको वो डुप्लीकेट डेटा निकाल के देते हैं. those algorithms are called as deduplication algorithms. So these algorithms can automatically identify and merge duplicate records based on predefined criteria. So these are the methods that can be used for tuple duplication. Okay, then next technique, fourth and last technique in data integration that is used is data value conflict detection and resolution. ठीक है, तो ये डेटा कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं डेटा में?
ओके, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए मैंने डेटा कॉन्फ्लिक्ट्स के। अगेन डेटा कॉन्फ्लिक्ट हमें क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज इट मे कॉज इनकंसिस्टेंसीज, इनएक्यूरेसीज, misleading analysis result. Okay, so problems are same. Now how this data value conflict occurs in the data, or what is data conflict? Here you can see first differences in representation. तो अलग अलग सिस्टम में सेम एट्रीब्यूट की जो वैल्यूज है वो अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे डेटा बेस में लेट से एक कॉलम है वेट, ओके, and we are collecting data from multiple resources. So weight might be recorded in kilograms in one system and pounds in another system. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेम डेटा अलग अलग यूनिट्स में सेव किया है, इसलिए उसमें इनकंसिस्टेंसीज आ सकती है। बिकॉज अगर हम वेट केजी में स्टोर करें तो लेट से 50-60, लेट से एक पर्सन का वेट है 50 kg, वही अगर हम पाउंड में स्टोर करें तो वो होता है अराउंड 90 kg। तो दिस इज द, सॉरी, 90 पाउंड्स, सॉरी, ठीक है। लेकिन अगर हम ये नंबर स्टोर कर रहे हैं तो एक है 50, एक है 90, एक है 100, राइट, और पाउंड्स में अगर स्टोर करेंगे तो 200 भी आ सकता है। So this is what incorrect data, because some of the data is stored in one unit and other data is stored in different unit, which is not consistent. Okay, so this is differences in representation. Then there can be differences in scaling. जैसे रूम प्राइजेस होते हैं होटल के, तो कभी कभी उसमें सर्विसेज और टैक्सेस इंक्लूड करके प्राइजेस होते हैं और कभी कभी एक्सक्लूडेड होते हैं। तो उसमें क्या होगा, देयर विल बी डिफरेंसेस इन स्केलिंग। वो जो कैलकुलेशन है दैट विल बी डिफरेंट, that is getting scaled differently across the system, and it may cause inconsistencies or inaccuracies. Then there can be differences in encoding. अगर आपके पास कुछ स्टूडेंट का डेटा है, ओके, मल्टीपल इंस्टीट्यूशन से अगर आप स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो लेट से एक इंस्टीट्यूट ने स्टूडेंट का ग्रेड्स जो है वो स्टोर करके रखा है ऐसे A+A, देन B, C, ऐसे, और दूसरे इंस्टीट्यूट ने लेट से उसके परसेंटेज स्टोर करके रखे हैं जैसे 80 एंड अबव, 80+, देन 75+, 65+ एंड लेस देन 65। तो ये क्या हो गया, डिफरेंसेस इन एनकोडिंग। या फिर यहाँ पे A+A, B, C ऐसे किया है, और कोई इंस्टीट्यूट है जिसने O, A+ ऐसे किया है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा इंस्टीट्यूट किस टाइप में डेटा स्टोर कर रहा है। लेकिन जब आप इंटीग्रेट करोगे, एट दैट टाइम यू हैव टू चेक कि कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू या यूनिफॉर्म वैल्यू पूरे डेटाबेस में यूज हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। देन देयर कैन बी डिफरेंसेस इन एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स, because attributes might be recorded at different level of abstraction, like total sales may refer to single store in one database, and कुछ डेटा सेट में ये जो टोटल सेल का कॉलम है वो रीजनल टोटल भी हो सकता है। ओके, so these are some of the reason which causes data value conflict in the data. ओके, और हमारा क्या काम क्या है यहाँ पे, बिफोर इंटीग्रेशन वी हैव टू रिमूव दिस डेटा वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो इस पे क्या सॉल्यूशंस है हमारे पास, स्टैंडर्डाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स, नॉर्मलाइजेशन, मेटा डेटा यूसेज एंड एब्स्ट्रैक्शन अलाइनमेंट। दीज आर द रिजोल्यूशन मेथड्स फॉर डेटा वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, एक फॉर्मूला है जिससे हम सारे वैल्यूज एक पर्टिकुलर रेंज में फिट करते हैं, ओके, ताकि अलग अलग यूनिट्स में भी अगर आपका डेटा स्टोर है तो वो भी एक
कॉमन स्केल पे आ जाए. ओके, वी कैन अप्लाई डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स. We can apply normalization technique. Okay, normalization is similar to standardization, where we adjust the data values to a common scale or format. Okay, this is, as I said, is very important point, metadata. अगर आपने डेटा के साथ मेटाडेटा स्टोर करके रखा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि केजी और पाउंड का डिफरेंस है, लेकिन इस वेट कॉलम के साथ आपने अगर मेटाडेटा स्टोर करके रखा है कि ऑल वेट्स आर स्टोर इन पाउंड्स, और ये अलग डेटा है, इसमें भी अगर स्टोर करके रखा है कि ऑल डेटा इज स्टोर इन केजी, तो यू कैन इजीली कन्वर्ट दिस केजी टू पाउंड्स और पाउंड्स टू केजी. लेकिन आपको उसके पहले पता तो होना चाहिए कि ये डेटा किस यूनिट में स्टोर किया हुआ है. ठीक है, एंड फॉर दैट मेटा डेटा इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके, सो मेटा डेटा, we can use metadata to understand and resolve conflicts in the data value. Okay, and then lastly we can use abstraction alignment. What is abstraction alignment? Reconciling differences in abstraction level by aggregating or disaggregating the data as needed. मतलब जो भी हम data store कर रहे हैं, that we have to store without any aggregation, और जैसे ज़रूरत है हमें वैसे हम लेवल बाय लेवल उस डेटा को एग्रीगेट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हमने एग्रीगेट किया हुआ डेटा स्टोर करके रखा तो इट में कॉज कंफ्यूजन बिटवीन द वैल्यू. सो दैट एब्स्ट्रैक्शन अलाइनमेंट शुड बी देयर. आया समझ में? यस, इज इट? Yes, ma'am. ओके, तो डेटा इंटीग्रेशन में कौन कौन से प्रोसेसेस देखे हमने? इंटीग्रेशन में डेटा इंटीग्रेशन में सबसे पहला क्या था, बताओ? यस, जो भी आपको याद आ रहा है वो बताओ. अभी तो मैंने सारा एक्सप्लेन किया आपको. टपल्स डुप्लीकेशन जो था